यहां तो मेरा दाखिला हुआ है। मेरा यह कहना था कि वो हक्का बक्का रह गए। फिर हम गए हजाम चाचा के पास। पहले तो वो एहतराम से हमारे लिए खड़े हो गए। फिर हमने उनको बताया कि हम कैडेट हैं, तो उन्होंने छलांग मारकर हमें दबोच लिया और आन की आन में ऐसी छिलाई हुई कि जंगल का जंगल सफा हो गया। जनाबे सदर, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाओ, यहां का बाबा आदम ही निराला है। यहां एक विदाउट स्टार होटल है जिसे यहां मेस कहा जाता है, जहां सिर्फ आलू का राज चलता है। आलू गोभी, आलू भिंडी, आलू टिंडे, आलू पालक, आलू छोले। अरे अभी तो आपने कुछ सुनना ही नहीं है। आलू मुर्गी की पसलियां और आलू बुरा नाम कीमा। जनाब सदर, चाय पीकर भी अंदाजा हो गया कि यहां के भैंसें दूध कम और पानी ज्यादा देती हैं। पानी भी इतना कि बादशाह डैम भर जाए। रात को हम मच्छरों से लड़ते लड़ते सो गए। सुबह ख्वाबे खरगोश के मजे लूट ही रहे थे कि आवाज आई, ओ भाई तुम अभी सो रहे हो। ओ भाई, हम तो 104 बुखार में 400 मीटर रेस गोल्ड मेडल से जीत के आते थे। चलो मैं आपको रिसेप्शन की यात्रा करा देता हूं। फिर दौड़ चल आवाजों के साथ हामता कामता रिसेप्शन पहुंचा और सर के बचे कुचे बाल भी साफ हो गए। जनाब सदर, कहां तक सुनोगे, लेकिन फिर भी सुनिए। नया पाकिस्तान बन चुका था, हमें छुट्टियां मिली, घर गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मेरा बेटा निकल आया। अपने बेटे को देखकर दिल बहुत खुश हुआ। मैंने उसे गोद में उठा लिया कि इतने में आज उसने सवाल किया, अंकल आप कौन? मैंने झट से उसे नीचे उतारा, उससे पूछा किसके बेटे हो? तो उसने जवाब दिया, कैडेट अरसलान 14171 ऑफ अयूब हाउस। बस मैंने ठंडी सांस भरी और घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरा बाप आ गया। मुझे देखकर हंस पड़े। मैं भी कह उठा, मुझे क्यों निकाला, मुझे घर से क्यों निकाला? अबा बोले, हा हा हा, ये तो इब्तिदा थी कि इतने में खानम नमूदार हुई। हम चुप हो गए, रो पड़े। मंजूर था पर्दा तेरा। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, with this, the speeches come to an end. May I now request the principal, Cadet College Pitaro, Commodore Mehboob Ilahi Malik Sitara Imtiaz Military, to accompany the chief guest, Sayyid Sardar Ali Shah, on the stage to present the souvenirs to the honorable chief guest. Ladies and gentlemen, the principal and the chief guest. First, I request Professor Dr. Tariq Umrani to receive the shield and souvenirs. Now, I request Professor Dr. Ghazal Kazim to receive the shield and souvenirs.
Now, I request Mr. Atib Raja to receive the shield and souvenirs. Now, I request Professor Nazim Ali Khan to receive shield and souvenirs. Now, I request Mr. Muhammad Farooq Danish to receive the shield and souvenirs. I request Mr. Muhammad Farooq Danish to receive the shield and souvenirs. Now, I request Ms. Durdana Chauhan to receive the shield and souvenirs. Now, we move into the most awaited part of the day, the results and the prize distribution. I once again request a worthy chief guest to give away the prizes to the winning teams. Ladies and gentlemen, now the results. First, the Urdu, the competition was very tough. Third position is shared in Urdu. Cadet Zahoor Ahmad from Cadet College, Mastung. He comes for third position. Then we have Cadet Captain Sarmand from Pakistan Naval Academy, third position. Please come out. Second position goes to now Cadet Sarmand is coming to receive the prize for third position. Now Cadet Ahmad Mujtaba from Colonel Sher Khan Cadet College, Sawabi, second position. Ladies and gentlemen, second position is also shared. Cadet Muhammad Yusuf Javed from Military College, Sui. Come out and please receive your trophy. Ladies and gentlemen, the first position goes to Ms. Noorul Huda, Hayat Higher Secondary School, Hyderabad. In English, we have Ms. Mehra Noor from Hayat Girls Secondary School, third position. Second position goes to Ms. Mehra Noor. She is coming to receive her trophy.
Second position goes to Miss Mahnur Javed from Behra College, NORE 1, Karachi. Second position. Miss Mahnur Javed, Behra College, NORE 1. Now the first position in English. Cadet Mohammad Yasin Tahir, Colonel Sher Khan, Cadet College, Sawabi. Cadet Mohammad Yasin receives his shield. Ladies and gentlemen, the competition is very tough because first position is champion is shared this time. Runners up goes to Behra College, NORE 1. Runners up trophy goes to Behra College, NORE 1. The team and the team teacher is to come and receive the shield. जी Ladies and gentlemen, champion trophy goes to Hayat Higher Secondary School, Hyderabad. Team and the team teachers are to come and receive the trophy. For the champion trophy, Colonel Sher Khan, Cadet College, Sawabi also come to receive champion trophy. The champion trophy in this competition is shared between the two teams. First, Hayat Girls Higher Secondary School, Hyderabad. Now Colonel Sher Khan, Cadet College, Sawabi, will come and receive. In the end, I would request all the position winners to come on the stage and have All the winners are requested to come on the stage for photograph, group photograph. Gentlemen, hurry up. All the position winners to come on the stage, please. Thank you. And now, ladies and gentlemen, may I request the chief guest to address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Commodore Mehboobillahi Malik, Principal, Cadet College, Petaro, judges, participating teams, members of faculty, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear cadets, Assalamu alaikum, Haq Maujood. I started with Haq Maujood.
I wish to tell you why we say Haq Maujood. This is the, I think we our slogan, or you can say our greeting, or it's a multi purpose and a meaningful word which says, this is the slogan of Sufis. We say and we believe in the coexistence, love, peace and tranquility. I'm really happy to be here amongst all these cadets in white color, white pigeons sitting in front of me. इतने अमन के सफ़ेद लिबास में मैंने एम्बेसडर देख के मेरा आज फर्म बिलीव है कि हमारे इस मुल्क की तकदीर जो है वो और संवरने वाली है, और हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ा खूबसूरत है और ताबनाक है। आज मुझे बड़ा मज़ा आया ऑनेस्टली यहाँ पे सुन के। मैं भी अपने स्टूडेंट्स लाइफ के उन डेज को रिकॉल कर रहा था जब आपकी तरह अपने टीचर्स की लिखी हुई स्पीचेस को रटा लगा के याद करके फिर स्टेज पे आके अदाकारी करनी होती थी। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये एक आपके लिए भी लर्निंग है, ये प्रोसेस है आपका। आप अर्ली स्टेज पे माइक कॉन्शियस ना हो, इतने लोगों के सामने बोलने का आपको हुनर आए, फन आए, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है। रॉट लर्निंग को वैसे हम डिस्करेज हमें करना चाहिए। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्रिएटिव अप्रोचेस हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है यकीनन, मगर एक स्टेज पे इनके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना पड़ता है। तो हम भी ऐसे करते थे। मैं किसी कैडेट कॉलेज का नहीं पढ़ा हुआ, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स का पढ़ा हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। तो उस असातिज़ा में लिख के देते थे 14 अगस्त को डिफरेंट डेज पे स्पीचेस, फिर घर में बैठ के हम रटे लगाते थे, आईने के सामने खड़े होकर देखते थे कि मैं कैसे लग रहा हूँ, मुझे कैसे तकरीर करनी है। उस वक्त हमने डेल कार्नेगी की बुक्स भी नहीं पढ़ी थी कि द आर्ट ऑफ स्पीचेस, और दुनिया में डिफरेंट जितनी भी बुक्स आई हैं। मगर अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इसका अपना एक रोल है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे सामने, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है। इकबाल साहब की यहाँ पे किसी शायर के हवाले से टाइटल रखा हुआ था, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। क्यों कहा थी ये एक बात, उसने क्यों कही थी? रिवायत शिकन, इकबाल साहब रिवायत शिकन बंदा था। वो शख्स था जिसने अपनी रिवायतें तोड़ी उस दौर की। हर चीज कदीम अजीम नहीं होती, मोतबर नहीं होती, जो पुरानी होती है जिद्दत को कबूल करना पड़ेगा। और इंसान की तब्दीली का, तरक्की का सबसे बड़ा राज जो है वो तगय्युर है, चेंज। ये दुनिया जो आज हम देख रहे हैं, दिस ग्लिटरिंग वर्ल्ड, ये जो दुनिया का डांसिंग फ्लोर है, दिस रोमिंग वर्ल्ड, ग्लोब जो है, इवॉल्विंग ग्लोब जो है, ये तगय्युर चेंज के दम से है, जो कांस्टेंट फैक्टर है। इकबाल साहब रिवायत शिकन थे, तभी उसने कहा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर और खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर। अकल अगर कैद हो जाए तो वो डेवलप नहीं हो सकती, वो नतीजे नहीं दे सकती, वो समाज को वो रिजल्ट नहीं दे सकती, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, मुक़य्यद ना हो। तो इसलिए ये आपकी लर्निंग का प्रोसेस है। आप यहाँ पे एक डिसिप्लिन सीखते हैं, यहाँ से फ्रॉम 5 to 9 आपका अपना एक रूटीन है। मुझे महबूब साहब पूरी आपकी कॉलेज घुमा रहे थे, मैं देख रहा था एक एक आपकी लैब,
आपके क्लासरूम, आपके डॉर्मेटरीज, जहाँ हॉस्टल्स आप जहाँ पे रहते हैं, मुझे बता रहे थे कौन से हमारे आज के बड़े बड़े लीडर साहिबान भी इधर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से लेके और कितने हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो इस कैडेट कॉलेज से निकले हैं। ये हमारे आल्मा मैटर है। आल्मा मैटर ग्रीक में कहते हैं ग्रेशियस मदर को, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, इट्स लाइक योर मदर, जहाँ पे लर्निंग होती है। इंसान जन्म लेता है तो पहली परवरिश और उसकी लर्निंग जो है वो अपनी माँ की गोद से स्टार्ट होती है, और फिर जब वो स्कूल में जाता है तो असातिज़ा वहाँ पे जो उस्ताद आपके जो हैं वो आपकी तरबियत करते हैं, आपको तालीम देते हैं। दैट्स योर आल्मा मैटर। सेकंड मदर इज़ योर इंस्टीट्यूशन वेयर यू लर्न, वेयर यू स्टडी। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस से और यहाँ पे बलूचिस्तान से, कैपी से, पंजाब से और डिफरेंट यहाँ पे कैडेट्स आए, आपकी आपस में एक इंट्रैक्शन हुई है और आपकी एक दूसरे के साथ कुछ समझने का, उनको परखने का आपको मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए कि उनकी लर्निंग हो और वो सीखे। हमें दूसरी बात भी अपने बच्चों को सिखानी है कि ये जो इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्ना साहब, ये जो हमारे आइकॉन हैं, उन्होंने क्या बुनियादी तौर पे दर्स दिए हमें। एक बात हमें समझनी है कि ये जो हम कैडेट्स हैं, आप कल जाके कोई मिनिस्टर भी बनेंगे, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बने, कल कोई जनरल भी बने, कोई कमोडोर भी बने महबूब साहब की तरह। एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि आप जिस धरती से, जिस मुल्क से, वतन से ताल्लुक़ रखते हो, वो दुनिया की कभी भी ऑफेंडर कंट्री नहीं रही है, वो रीजन नहीं रहा है, कभी भी ऑफेंड नहीं किया उन्होंने। ये जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक, आगे जाके गुजरात के काली बैंगन तक, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जितनी भी साइट्स हैं आपके करीब, यहां से कुछ आगे आमरी की सिविलाइजेशन है, आमरी की तहजीब है। इस पूरी सिविलाइजेशन में, इस पूरे इंडस वैली में, फ्रॉम कश्मीर टू काली बैंगन एंड केटी बंदर, आर्कियोलॉजिस्ट हैवंट फाउंड अ सिंगल वॉर वेपन। एक भी वार वेपन नहीं मिला है। ये दुनिया को बताने के लिए आपका पैसिफिस्ट मैसेज है कि वी बिलीव इन लव, वी बिलीव इन हार्मनी, वी बिलीव इन पीस। बट यस, हम खुद की हिफाजत करना जानते हैं। आर डिफेंस सिस्टम कभी भी वीक नहीं रहा है। यह अलग बात है कि हम ऑफेंडर नहीं रहे, हमने कोई भी, हम इन्वेडर नहीं रहे, हमने किसी भी रियासत पे, तारीख में किसी पे हमला नहीं किया, मगर हम खुद को डिफेंड करना जानते हैं। कोई मैली आंख उठा के दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ देख नहीं सकता। ये भी रियलिटी है। ये चीज़ सिखानी होगी अपने बच्चों को कि आप प्राउडली कह सकते हैं कि हमने जब गन हाथ में उठाई तो किसी को मारने के लिए नहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाई है। हमने हथियार बनाए तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने डिफेंस के लिए हमने बनाए, हमने ऑफेंस के लिए नहीं बनाए। ये हमारा वो इंग्रेडिएंट है जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन का, जो हम पूरी दुनिया में बता सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने मज़हब की बुनियाद पे किसी के साथ, किसी से नफ़रत नहीं की, बिकॉज कि हमारे पास बुल्ला शाह से लेकर इकबाल से, बाबा रहमान से, खुशहाल खान खटक से लेके शाह लतीफ़ और सच्चल सरमस्त तक हमारे पास एक सूफीज़म की एक लेगेसी है पूरी। हमारे पीठ पे वो खड़े हैं, हमारे बैक पे वो लोग खड़े हैं। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ डहंदा, किसी बंदे दा दिल न ढावी, रब दिलां विच रहंदा। इकबाल ने क्या बात खूब कही है, सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं।
इनके अलग एस्पेक्ट हैं। दुनिया के जितने भी यूनिवर्सल पोएट रहे हैं, जितने मुफक्किर रहे हैं, जितने क्रिएटिव लोग रहे हैं, तख्लीककार रहे हैं, उनके दो एस्पेक्ट होते हैं उनकी पोइट्री में। एक तरफ अगर शाहीन है तो दूसरी तरफ हंस भी कैरेक्टर है। हंस भी कैरेक्टर है। हंस वो है जो सीप से मोती चुगता है। तो हमें वो चीजें सिखानी होगी। डिबेटिंग कंपटीशन जब भी हो तो मैं असातिज़ा से भी ये गुजारिश करूंगा कि उनके बच्चों को पहले तो बैठ के समझाना। मैं गया आज लाइब्रेरी में, लियाकत मेरे पुराने दोस्त हैं, रिजवी साहब, महबूब साहब भी साथ थे, तो इकबाल कॉर्नर पे एक बच्चा खड़ा था जो अभी आके उसने मुझसे सिग्नेचर ली। तो वहाँ पे मैंने कहा कि इकबाल का कोई शेर सुनाए, तो उसको याद नहीं था या उसने पढ़ा नहीं था। तो मैंने उसको एक शेर सुनाया इकबाल साहब का कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं। तो वो लिख के मेरे पास लेके उसने सिग्नेचर ली। ये इंस्पायरेशन, बच्चा को इंस्पायर करना है, रॉट लर्निंग से उसको निकालना है बच्चे को। वो तकरीर करने के लिए आए तो रट्टा मार के ना आए, वो समझ के आए कि मुझे इकबाल की कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है। ये मैं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर नहीं कहता खुद को, मैं कहता हूँ मैनेजर। मैं मिनिस्ट्री में आया हूँ मगर मैं मैनेजर, मुझे चीज़ें मैनेज करनी है। बिकॉज वी आर सोशल सेक्टर, वो हम सर्विस प्रोवाइडर है, हम हाकम नहीं है। हमें हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो पीपल विल बाय इट, अच्छी नहीं होगी तो बाय नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल सिस्टम इसलिए वो इवॉल्व हुआ है कि वहाँ पे हमने, हमारी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सर्व करना छोड़ दिया है सोसाइटी को। वो प्रॉपरली सर्व नहीं कर रहे, उनकी हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। हमारी इस तरह की जो मुझे कन्फेस करने में कोई हर्ष नहीं है, खुशी है कि हयात के बच्चे यहाँ पे प्राइज़ ले रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। मगर मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं इस तरह का एनवायरनमेंट किसी कॉलेज में, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है कि हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे अच्छे एयर कंडीशन नहीं चल रहे, ना साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम भी नहीं। ऑडिटोरियम बने हुए हैं मगर बिल्कुल डिप्लोरेबल कंडीशंस में। मैं गया हूँ कॉलेजेस में, हमें बस सिस्टम ठीक करना है, हमें ऑन करना है। एजुकेशन के बगैर हम चल नहीं सकते। एजुकेशन हमारा ऑक्सीजन है। अल्लामा आया काजी साहब कहते थे, एजुकेशन इज टू लीड आउट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट्स। वो हमें अंधेरों से लेकर रोशनी की तरफ लेने का जो सफ़र है वो तालीम से ही मुकम्मल हो सकता है। इसलिए मुझे खुशी है बहुत यहाँ पे आके। हमने किस्से सुने थे पेटारो के कैडेट कॉलेज के कि जितने भी पेटारियन हैं उनका बड़ा है कि आपस में बॉन्ड होता है। तोबा, डॉगमेटिज्म मैंने नहीं देखी। पेटारियन कहीं का भी हो, दूर से देखेगा, सबको छोड़ के कहेगा ये मेरा पेटारियन है। वो पता नहीं जितना भी डिफरेंस हो उनकी बैचेस में, मगर एक बॉन्ड है उनका। आप भी निकलेंगे, आप भी यहां से निकलेंगे कल। कोई कहां जाएगा, कोई कहां जाएगा, मगर आप जब भी मिलोगे आपस में तो यकीनन आपका एक बॉन्ड होगा। उस इदारे की तवस्सुत से, उस कल्चर की वजह से जो आपको यहाँ पे कल्चर आपने प्रिवेल किया होगा, जो आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पे आपके प्रिंसिपल ने और उसकी टीम ने दिया होगा, वो आपको कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और यू विल फील कनेक्टेड वेयर एवर यू गो, कहीं पे भी आप बैठे हों। ये इदारा होता है। हमने एक मूवी देखी थी, मोहब्बतें, गुरुकल वाली मूवी। उसमें जो प्रिंसिपल है, होप के महबूब इलाही साहब ऐसे प्रिंसिपल नहीं है जो उस फिल्म में, मोहब्बतें मूवी में वो अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया था। तो मेरी मिनिस्ट्री की हवाले से जितनी भी सपोर्ट है महबूब इलाही साहब, आई एक्सटेंड माई फुल कोऑपरेशन विथ यू। मेरे हवाले से जो भी खिदमत होगी, डेफिनेटली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड आई एम देयर टू सर्व यू। और हमें ये होनहार नौजवान पैदा करने हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी पैदा करने हैं, हमें रोशन ख्याल लोग पैदा करने हैं यहाँ। हमें अपने तारीख़ का, अपनी तहजीब का शऊर रखने वाले, इदराक रखने वाले हमें पैदा करने हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। और हमें पोल्ट्री चिकन प्रोड्यूस नहीं करने, ये हमें तय करना है
कि हमें मुहिब वतन पाकिस्तानी पैदा करने हैं जो अपने वतन का दिफा भी कर सके, मगर वतन के माजी का भी उनको पता हो, उनके पास्ट का उनको पता हो, उनकी हिस्ट्री का पता हो। लाइब्रेरी के हवाले से मुझे लियाकत रिजवी ने कहा कि वो लाइब्रेरी, मैं बुक्स के हवाले से जितने हमारे डिपार्टमेंट्स के हैं गवर्नमेंट के, वो बुक्स मैं बिल्कुल फुली प्रोवाइड करूंगा। और एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने कहा तो मैं बिल्कुल, आप मुझे फिजिबिलिटी बना के दीजिए, आई विल सपोर्ट यू डेफिनेटली इन माय नेक्स्ट बजट। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके आप सबसे मिलके, और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स को देख के कि जो अपने कॉलेज वालों के लिए ज़्यादा तालियां बजा रहे थे और दूसरों के लिए कम बजा रहे थे। और एनीवेज अगेन ये एक अफेक्शन नेचुरल है कि हम अपने इदारे से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मोहब्बत कीजिएगा अपने इदारों के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।